Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जयंतो दास। जयंतो, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। US-China trade war intensifies. President Donald Trump orders additional 10% tariffs on $200 billion worth of Chinese imports. Stock market extends yesterday's steep fall. BSE Sensex slumps 0.8%, while Nifty drops 0.9%. SEBI approves new KYC norms for foreign portfolio investors, revises settlement mechanism, and rupee falls to a lifetime low of 72 rupees and 98 paise against US dollar. अमेरिका और चीन के बीच कारोबार गहराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त $200 बिलियन के चीन से आयात पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की। शेयर बाजारों में कल की भारी गिरावट के बाद आज भी मंदी का रुख। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट में, निफ्टी 0.9% के नुकसान में रहा। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अपने ग्राहक जानों यानी KYC के नए मापदंडों को दी मंजूरी। सेटलमेंट प्रणाली में किया संशोधन और रुपया डॉलर के मुकाबले 72 रुपये 98 पैसे के ताजा ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक गिरा। In our top story, the trade war between the US and China has intensified. US President Donald Trump has imposed additional 10% tariffs on about $200 billion worth of Chinese imports. The higher import taxes will apply to almost 6,000 items, making the biggest round of US tariffs so far. The tariffs will take effect from 24 September, starting at 10% and increasing to 25% from the start of next year, unless the two countries agree on a deal. Trump said the latest round of tariffs was in response to China's unfair trade practices, including subsidies and rules that require foreign companies in some sectors to bring on local partners. Trump also warned that if China takes retaliatory action against US farmers or industries, Washington will immediately pursue Phase 3, which is tariffs on approximately $267 billion of additional imports. If he proceeds with this tariff, it would virtually mean all of China's US exports would be subject to new duties. So far, the United States has imposed tariffs on $50 billion worth of Chinese products to pressure China to make sweeping changes to its trade, technology transfer, and high-tech industrial subsidy policies. How do you see this development? There was earlier a talk of a deal, then Trump retorted by saying that, we can wait, we are not eager to make a deal, and now he has imposed 10% tariffs on $200 billion worth of Chinese imports. How do you see China reacting to this? Well, obviously it's a trade war and no one reacts softly when there's a trade war happening on the horizon. What's important to understand is this was in the offing. It's not come as a surprise. There was enough news and enough information and enough threats whereby it was told that this $200 billion of extra goods will be taxed by the US. Yes, the timing which comes in obviously for China to take a call on what to do next. I guess there would be some back channel understanding or talk. But isn't the key question on depegging the Chinese currency, the yuan to the US dollar? The currency issue has been running for decades. So, I mean, this is not the way to, do a deal in terms of... but at the same time, I would also say this was all part of Trump's election manifesto. So it's not like which has come in as a shocker this morning that, he has decided to take on. He is following what he, initially promised. Now, that doesn't mean what he promised was some of the best things to happen to both USA, China, or even to the world. But what I'm telling is the man is delivering to what he has promised. And that's an important thing to look forward to because the country, and in this case US, has voted him for this. Whether you like it or you don't like it, but it will have a severe global impact
in terms of such trade measures, and I do believe the Chinese retaliation will be coming sooner than later at this point of time. जंतु, जैसा हमारी स्टोरी में भी कहा गया है, जो एक मूल कारण था यूएस द्वारा ये कदम उठाने का कि चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और वो चाहता है यूएस की चाइना अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हाईटेक इंडस्ट्रियल सब्सिडी पॉलिसीज में बदलाव करे। आपको लगता है कि शायद आगे चलकर चाइना कुछ इन दिशाओं में कदम उठाएगा और कुछ डील की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि अभी उन्होंने 10% से ही शुरू किया है और फिर विंडो रखी है 25% तक उसे बढ़ाने की। सो एक तरह से उनका जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि कुछ इसका कुछ हल निकले। देखिए, ट्रेड वॉर में हमेशा किसी का जीत होते नहीं अगर देखा जाए तो, खास करके जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और साथ में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और साथ में एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशंस, साथ में जब इस तरह से ट्रेड वॉर का एक जो ट्रेड वॉर का जो एक सिलसिला जो चल रहा है, लेकिन साथ में हम लोग को दो चीज समझना है यहाँ पे। एक तो ये है कि ये जो शुरू हुआ है सिलसिले, इसका अंत कहाँ तक जाके हो सकता है। अब फेज 3 का भी हम लोग खबर सुने हैं कि अगर ये इसका बावजूद भी कुछ खास चाइना कदम ना उठाए तो फेज 3 भी होंगे, और जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति ने जैसे उन्होंने जो भी अपना वादे किए हैं ट्रेड वॉर लेके, वो सारे एक एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरी जो मुद्दे है वो है कि दुनिया भर में किस तरह का हलबली अलग से मचे हुए इस तरह का ट्रेड वॉर ओपन होने की वजह से, ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ में ये हमें समझना चाहिए कि एक अनिश्चितता जो पूरा दुनिया में ट्रेड लेके ये जो सिलसिला जारी है, ये अगर बढ़ते रहेंगे तो आने वाला साल हम लोग के लिए खास करके देखा जाएगा बहुत ही मुश्किल भरा रहेगा। हम लोग मतलब पूरा दुनिया के लिए अगर इकोनॉमिक फ्रंट वगैरह देखें तो। लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा अर्जुन जी को कि हमेशा बैक चैनल टॉक्स भी होते हैं। एक तरफ तो देश आपस में लड़ाई करते हैं, अपना स्टेटमेंट्स पास करते हैं, तो बैक चैनल में और साथ में ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा बिजनेस गोष्ठी दोनों देशों में इन्वॉल्व होते हैं बैक चैनल टॉक्स में, जहां पे वो लोग एक हल निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो राजनीतिक समस्या जो भी है, लेकिन कूटनीतिक समस्या भी है साथ में, और बिजनेसमैन आपस में कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं जाके कुछ ऐसे मिडिल ग्राउंड हो जो वो अपना लीडरशिप को वापस जाके समझाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप ये मत भूल जाइए कि इस तरह का ट्रेड वॉर का साथ साथ सारे कंपनियां चुप बैठे हैं और वो लोग सारे जो भी इश्यूज है चुपचाप झेल रहे हैं और भूल गए कि भाई यहाँ पे आगे हमें कुछ करना है, और ये सोच रहे हैं कि चलो भाई आज अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, चाइनीज कंपनी सोच रहे हैं इसको हम झेलेंगे, कल अमेरिकन कंपनी सोचेंगे चाइनीज गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैरिफ लगा उसको हम झेलेंगे, ऐसा होते नहीं है। तो वो एक बैक चैनल बोलते हैं, उसमें भी बहुत मैं मानता हूँ एक्टिविटी इस वक्त जारी है जहां पे जाके कोई मिडिल ग्राउंड। अब ये देखना पड़ेगा दोनों गोष्ठी जो बिजनेसमैनों का गोष्ठी है वो किस हद तक जाके अपना लीडरशिप को अलग से इन्फ्लुएंस करके कहीं ना कहीं कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढ पाता है। इस वक्त कोई ऐसा कुछ खबर नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कोई डील हो। अर्जुन ने भी सवाल ये किया था, बट मैं नहीं मानता इस वक्त कोई इस तरह का कुछ है। एज्यूमिंग कि ये वॉर ज्यादा गहराएगी, भारत के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? देखिए, विदेश में कुछ भी ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो में हम देखे कि टर्किश लीरा जब एक दिन में 18% के करीब गिरावट हुए थे, ओवरऑल क्रॉस करेंसीज किस तरह से वोलेटाइल हो गया था। So what about dumping of goods into India from China? See, that's an important issue, and it was supposed to be taken up in WTO and various areas. And China, as a bully nation, when it comes to trade, is not a secret. You know, I mean, there is a saying they say, if you right from South China Sea, if you look towards the Maldives, the only ships which are going are all Chinese ships. With the amount of goods they are sending to each and every single country port, they have almost taken over the important nations of Africa in that sense. In terms of trade dominance, in Zimbabwe, the Chinese currency is being there, you know, as a important currency. So, taking care of all those things, there is no doubt that China has been identified as a rogue nation. But nevertheless, China's role, dominance, and scope of trade in the overall global scenario, any crossfire which happens, both in terms of tariff or in terms of anything else, would have a severe impact both on other nations as well as India.
चलते हैं अगली खबर की ओर, जो है शेयर बाजार से जुड़ी हुई। चुनिंदा प्रमुख स्टॉक्स में कमजोरी के बीच स्टॉक मार्केट में कल की तीव्र गिरावट के बाद आज भी गिरावट का दौर जारी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.5% से अधिक की गिरावट पर बंद हुए। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनावों के चलते विश्व भर में व्यापारिक धारणा नकारात्मक रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की मंदी से 295 अंक कम होकर 37,291 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% की मंदी से 99 अंक लुढ़ककर 11,279 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक प्रत्येक लगभग 1.5% के नुकसान में रहे। इन दोनों सूचकांकों का प्रदर्शन सेंसेक्स से कम अच्छा रहा। The stock market extended yesterday's steep fall amid weakness in select index stocks. The BSE Sensex and Nifty slumped over 0.5% as sentiment across the globe was negative amid growing trade tensions between US and China. The BSE Sensex slipped 295 points, 0.8% to close at 37,291. The Nifty at the National Stock Exchange also slumped 99 points or 0.9% to 11,279. Among secondary barometers, the BSE mid-cap and small-cap indices fell about 1.5% each. The market breadth indicating the overall health of the market was weak. On the BSE, 892 shares rose and 1,791 shares fell. A total of 165 shares remained unchanged. State Bank of India, Tata Motors, Bajaj Auto, Axis Bank, Bharti Airtel, Vedanta and ICICI Bank were the major Sensex losers. Some of the major Sensex gainers were Hindustan Unilever, Yes Bank, Wipro, NGCITC and TCS. And on this, we are joined by Vinita Sharma, market analyst. I hope we have Vinita on the line. अभी शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जयंत, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कल गिरावट आई थी 505 अंकों की, सो कुल 800। विनीता जी से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। विनीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्र में। विनीता जी, कल की भारी गिरावट के बाद आज भी गिरावट आई है। 2 दिनों में 800 अंकों का नुकसान आया है सेंसेक्स में। कैसे देखती हैं आप इस दौर को? क्या इसके प्रमुख कारण हैं? आगे आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? So surely this fall in the market has been more on the macro concerns, and if you see that the crude is already trading at a high level with rupee depreciating. Rupee also today also it is depreciated. So overall, the combination of crude rising and rupee depreciating is causing little bit of problem in the macroeconomic scenario of Indian economy, because that puts our trade deficit or current account deficit under threat. तो जो अभी ट्रेड वॉर्स की सिचुएशन है, चीन पर यूएस ने और $200 बिलियन गुड्स पर टैरिफ्स लगाए हैं एडिशनल। सो एक तरह से वो टिट फॉर टैट वॉर जारी है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में शायद जो बाजार का सेंटिमेंट है वो डिप्रेस्ड रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। इसके कारण बाजार में जो सेंटिमेंट्स है वो डिप्रेस्ड है। इफ यू मस्ट हैव कवर्ड द स्टोरी कि आज सऊदी की तरफ से भी हमें हिंट्स मिले हैं कि एनी प्राइस ऑफ बिलो $80 फॉर क्रूड इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। तो आप अगर इफ यू रिमेम्बर, ब्रेंट हैड टच्ड अ हाई ऑफ $80.5 in May, and after that it had cooled off post Saudi stand that high crude will not be good in the long run. But the persistent drop in production in Venezuela and Iran sanctions is causing, this fresh pressure on the crude prices. Now, in the recent future, like on Sunday, Saudi Arabia and Russia and other exporting countries will be meeting. And then if the outcome is कि crude 80 के ऊपर ही trade करेगा, if it becomes a reality, surely it will be good for crude prices, but it will be negative for India's trade deficit. Vinita, just looking at the broad range of stock indices, is the mutual fund, the domestic institutional investor and the FIIs, are they looking at companies to buy which have good export sales? Is that the strategy right now with the way it is happening macroeconomically across the globe? Surely, it's actually, if you look from the market point of view, so one is the global macro which impacts the overall earning scenario going forward, and the other part is the corporate earnings.
if you look at the corporate earnings of many of the companies, in fact Nifty के जो corporate earning हम estimate कर रहे हैं for FY19 and FY20, we are expecting 20% plus profit growth for the next 2 years. अगर आप ध्यान दें तो 2012, 13, 14, in fact 15, 16, 17, for the past 3-4 years, we have not seen any Nifty growth upwards of 8%. Like FY18 में भी 8% index growth थी, 17 it was 8%, 16 it was -4%, 15 2% Nifty की earnings grow करी थी. So if you look at the corporate earnings still looks good. Definitely the crude and the rupee depreciation will be an overhang on the overall structure. Ma'am, are the earnings from the domestic market or from the export market, which is driving buying and selling in the stock market right now? That's my question. So if you look at the export sales, definitely there are many IT companies or pharma, or these are the companies that will report good earning growth going forward, and they have a good weight in the overall indices. So I think from the corporate earnings point of view, we will obviously be cushioned. So I think the lower side of the Nifty will be arrested. विनीता जी, आप कह रही हैं कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे बने हुए हैं. इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ के जो लेटेस्ट फिगर्स थे वो 8.2% थे, आईआईपी ग्रोथ के 6.6%, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है. इनफैक्ट 4% से नीचे आ गई है सीपीआई. तो आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स भी बाजार के सेंटिमेंट के लिए अच्छे होंगे और हम बियर मार्केट में स्लिप करने से बच पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल. हमारा ये अनुमान है कि आगे मैक्रो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो इनफ्लो है फंड्स का, वो काफी इम्पैक्टेड रहता है. बट अगर आप ध्यान दें तो अब इंडियन मार्केट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिक इनफ्लोज. हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज इतने अच्छे हैं, नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इनफ्लोज. So one risk, in fact, this is a good thing also, and it's a risk also कि domestic inflow intact अगर रहे तो हम we are not dependent too much on the foreign flows. विनीता जी, आपने फॉरेन फ्लोज की बात करी. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेबी की एक स्टोरी है, उस पर भी हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे. सेबी के बोर्ड ने, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए. हाँ जी. सेबी के बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के लिए अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी के नए मानकों को अपनी मंजूरी दे दी है. ये जानकारी देते हुए सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने बताया कि नए दिशा निर्देश जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सेबी एफपीआई को कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार करने की अनुमति देगा, सिवाय संवेदनशील कमोडिटियों के. सेबी बोर्ड ने डी लिस्टिंग से जुड़े नियमनों के संशोधन को भी मंजूरी दी ताकि इस प्रक्रिया में ज्यादा सरलता आए. श्री त्यागी ने कहा कि बाजार नियामक सेबी सेटलमेंट प्रक्रिया में संशोधन करेगा, लेकिन ये जानबूझकर ऋण वापस न करने वाले देनदारों या आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों के लिए लागू नहीं होगी. क्या कहेंगी आप विनीता जी, ये जो कदम उठाया है सेबी ने एफपीआई की केवाईसी नॉर्म्स में संशोधन करने का, उनको सरल बनाने का, ये कितना इंपॉर्टेंट है उनको डेरिवेटिव्स कमोडिटी बाजार में अनुमति देने का? Definitely, these are very important moves from India point of view, because we have to welcome the foreign flows into India, and any regulation on the part of KYC is always welcomed. Also, it will help like commodity or derivative market में अगर इनकी entry होती है तो definitely we will get a better price situation. एक price situation जो हम Indian market के संदर्भ में देखेंगे वो global के comparative ज्यादा अच्छा रहेगा. So I think it will be more, the volatility in the Indian commodity prices will be more contained, because now we have global flows also coming. Vinita, when you say pricing, we are talking about derivatives where there will be greater participation by FPIs into this market when they pay premiums to buy these futures and options in the commodity derivatives market. Are they seeking volumes? Is that why there are more norms regulating the conduct of FPIs? See, volumes करना तो एक definitely एक reason है.
बट इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, जब फॉरेन फ्लोज भी हमारे होते हैं तो आप एक स्टेबल प्राइसेस की तरफ मूव करते हो, बिकॉज आप पूरे ग्लोब को वन मार्केट में ले आते हो. So once you are contained to India and so the pricing volatility will be there. So once you welcome foreign funds also, so I think that will give a stability to the prices, and it will be more in line with the global commodity markets. Thank you so much, Vinita ji, for being with us on the program Market Mantra. That was market analyst Vinita Sharma with us. और अब चलते हैं मुद्रा बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले गिरकर 72 रुपये 98 पैसे प्रति डॉलर के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर दर्ज हुआ. रुपये में आज कुल 46 पैसे की गिरावट दर्ज हुई. कल रुपया 66 पैसे की गिरावट से 72 रुपये 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर तक आ गया था. वर्ष 2018 में अब तक रुपये में डॉलर के मुकाबले 11.9% की कुल गिरावट दर्ज हो चुकी है. जयंतो 112 पैसे की गिरावट आई है 2 दिनों में और रिकॉर्ड न्यूनतम स्तरों पर है रुपया. साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कई एनालिस्ट द्वारा कि ये डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है रादर देन रुपए में गिरावट. लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग एक इंपोर्टिंग कंट्री हैं, इसलिए हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है रुपए में गिरावट. क्या लगता है आपको, क्या क्या विकल्प है सरकार के पास या आरबीआई के पास इस गिरावट को थामने के लिए? क्या इंटरेस्ट रेट्स या बॉन्ड्स इशू करके कुछ हल निकाला जा सकता है? हाँ, देखिए सवाल तो ये है कि कोशिश किया जा रहा है दोबारा एनआरआई बॉन्ड्स का द्वारा कुछ शोरिंग अप किया जाए और शायद वो तीसरा तिमाही में लॉन्च भी हो जाएंगे. इस तरह का स्थिति रहे. जो रेट ऑफ एक्सचेंज का जो बात चल रहा है उसमें जरूर आपने ये कहा कि ग्लोबली डॉलर हैज स्ट्रेंथन्ड अप अगेंस्ट ऑल करेंसीज. और अगर आप परसेंटेज का रूप से अगर आप देखें तो उसमें अगर बाकी से टॉप 15-20 करेंसी के साथ अगर कंपेयर करें तो उसमें रुपये का शायद उतना बदलाव नहीं आया है कंपेयर टू अदर करेंसीज. लेकिन उसमें हम इसलिए अलग से सोलेस नहीं ले सकते क्योंकि आपने जैसे कहा सवाल में कि काफी इम्पोर्ट लेड नेशन है हम लोग का, और ऐसा स्थिति में जिस तरह का नुकसान है खास करके तेल का भी अगर आप देखें इस वक्त, तो उसमें उतना हम लोग के पास हेडवे नहीं है या हेडरूम नहीं है कि अफोर्ड कर सके. तो ऐसा स्थिति में सरकार करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो भी निर्णय लिए थे, अभी वित्त मंत्री जी ने परसों कुछ निर्णय लिए, और ये निर्णय रातों रात ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आके आप 2-2.5 रुपया का बदलाव देख लो. उसमें एक मिडिल टर्म एक आपको पीरियड होता है जहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा उस निर्णय अलग से इफेक्ट हो. और ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि मीडियम टर्म में रुपये का जो स्तर है वो यहाँ इस वक्त जो स्तर है उसमें शायद थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाएंगे. रुपये विल गेट स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर. इमीडिएट टर्म के लिए आपको लगता है कि एफपीआई फ्लोज अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कदम उठाना पड़ेगा? बिल्कुल. देखिए वो तो खैर ऑलमोस्ट निश्चित है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक बदलाव अलग से आएंगे, उसमें तेजी शायद आ सकता है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आप रातों रात ला सकते हैं, लेकिन इनफ्लोज आप रातों रात नहीं ला सकते. उसमें समय लगता है. एफडीआई ऐसा नहीं है कि दरवाजे के पास बैठा है और रेट बढ़ते ही सब आ जाएंगे. लेकिन ये जरूर है कि एक अलग से एनवायरमेंट क्रिएट होगा और इस एनवायरमेंट के दौरान अगले 2-3 महीने में एफआई फ्लोज या एफडीआई फ्लोज में फिर से हम तीव्र गति में ये देख सकते हैं. ये जरूर है कि थोड़ा बहुत हम लोग को शायद अगले 2-3 महीना झेलना पड़े रुपये का इस तरह का इनकंसिस्टेंट लेवल्स. लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक रुपये का ये है कि डॉलर अगर इस वक्त जहां पे है मोरलेस रुपये भी स्टेबल होना चाहिए. इस वक्त आप स्टेबल को 65, 66, 67 रुपया में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये जो देरी का पिछले एक हफ्ता के दौरान अगर आप देखें जो वोलेटिलिटी है उस वोलेटिलिटी में थोड़ा रुकावट आके कहीं ना कहीं रुपया दिशा लेके अलग से उसी में आसपास रहते रहेंगे. Is there speculation in the derivatives market for foreign exchange? Is that pulling the rupee down? Well, this is something which, it's a call on both sides in terms of what is happening, because typically any volatility, there is always a small iota of, factor in, if you see where they say that speculative markets are actually playing in, being it the rupee dollar exchange rate, being it commodity prices. चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. अमेरिका द्वारा चीन पर ताजा आयात शुल्क लगाने के दबाव के बावजूद एशियाई शेयर बाजारों में आज दोपहर में फिर तेजी आ गई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.8% के उछाल पर बंद हुआ और हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% की बढ़त में रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 0.3% की वृद्धि पर बंद हुआ. जापान के निकेई सूचकांक में 1.4% की तेजी दर्ज हुई. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.07% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ.
यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी, फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स प्रत्येक 0.2% की बढ़त पर थे। Moving on to the U.S. Stock market, U.S. stock futures fell after U.S. President Donald Trump said he will impose tariffs on an additional $200 billion worth of Chinese imports in a sharp escalation of the trade conflict between the world's two biggest economies. Nasdaq Composite fell 1.4%, S&P 500 also dropped by 0.6%, and Dow Jones Industrial Average fell by 0.4%. That came after all three major U.S. indexes fell on Monday, with the tech-heavy Nasdaq posting its biggest percentage loss since late July. Just briefly, the U.S. market has fallen because of developments internationally between U.S. and China, and the U.S. raising the import tariff. Why is it impacting the U.S. stock market? Well, typically, it goes back to the volatility factor where, investors nowadays just not only invest in US, they'll be investing in Asia, Europe, US, all major markets across the globe. And given the scenario of the volatility is there will always be a wave. And if you remember the first part of our discussion which we did when we were discussing the tariff barriers and trade barriers, that's the whole focus where I said, you can't insulate yourself. Even your US markets will face turmoil. And I'm sure US companies would like to take this issue up seriously in terms of what to do next, both to keep themselves resilient from such sort of influxes or turmoils, as well as where the trade war is actually headed. What about price inflation? With cheap imports now out of the picture, is a consumer in the US going to face higher prices? Well, that's a natural way to say, yes, they may be facing, but see, these things take time to settle, and I don't think there'll be any immediate threat. But of course, if there's a huge volatility coming in, there's always been seen with volatility also comes in, price spikes. So I'll not be surprised if we have moderate price spikes happening in the US economy. चलते हैं सराफा बाजार की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 10 रुपए महंगा होकर 31,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। वैश्विक स्तर पर रुख कमजोर रहने के बावजूद स्थानीय आभूषण निर्माताओं की खरीदारी जारी रही। चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं में बढ़ जाने से चांदी भी 20 रुपए महंगी होकर 37,700 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका द्वारा चीन से आयात पर शुल्कों का नया दौर लागू किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर चिंताएं गहरा जाने से डॉलर में तेजी आ गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव सोने की कीमतों पर पड़ा। सिंगापुर के बाजार में सोना 0.38% कम होकर $1,196 प्रति आउंस से कुछ ऊपर दर्ज हुआ और चांदी 0.53% की गिरावट से लगभग $14 प्रति आउंस पर आ गई। क्या कहेंगे आप? सोना हमेशा एक सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता था, सेफ हेवन, लेकिन अभी इतनी टर्मोइल है पूरे विश्व में, लेकिन सोने की जो कीमतें हैं वो डिप्रेस्ड है। क्या वो अपना वो मैंटल खो चुका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त फोकस पूरा कमोडिटीज में है। देखा जाए तो मेटल्स में शायद ग्लोबल इन्वेस्टर्स को उतना रुचि इस वक्त है नहीं। और आप एक और चीज बोल रहे हैं कि जब करेंसी वोलेटिलिटी होता है, निवेशकों को काफी रुचि उसमें भी शिफ्ट होता है, जहां पे वो लोग करेंसी में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा खास करके मूल तौर से ऐसे कुछ घटनाएं दुनिया में घटे नहीं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि सोने के ऊपर अलग से रुचि लोगों का खत्म हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इट्स अ बिट डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट एज अ कमोडिटी इट्स स्टिल अ वेरी स्ट्रांग कमोडिटी फॉर ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स. Moving on to the oil market, global crude oil prices rose today as investors focused on the impact of US-China trade war. Brent crude oil futures rose 62 cents to trade at $78.71 a barrel. The US crude futures gained 55 cents to $69.54 a barrel. Now, the impact of the US-China trade war on the oil market, will the demand for oil in China come down because of this, or will it go up? And what will be the impact on prices? Well, the global impact on prices, if is our main prime concern rather than what's going to happen in China in terms of its demand, I guess the volatility will be increasing further if the trade wars continue at this point of time. And taking a cue from there is certainly a very bad news for India, because if crude oil spikes up further from here, the government has to take some important domestic measures to keep the prices in a manageable level. और अमेरिका ने कहा है कि सऊदी, रशिया और यूएस मिलकर ऑफसेट कर सकते हैं ईरान से जो सप्लाई में शॉर्टफॉल होगा। आपको कितनी आशा दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन अगर वो पंप उतना करते हैं तो हमेशा देखा जाता है कोल्यूसिव ऑयल कार्टल्स का कहीं ना कहीं सी देयर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट, इस तरह का कोल्यूसिव ऑयल कार्टल्स में इट्स नॉट एज इजी एज अ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहां पे एक चीज कुछ बढ़ रहा है तो दूसरों का
आप काम करके बैलेंस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंतो, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे साथ ये विस्तृत चर्चा करने के लिए। Thank you very much. And before we close, a reminder of the headlines. US-China trade war intensifies. President Donald Trump orders additional 10% tariffs on $200 billion worth of Chinese imports. Stock market extends yesterday's steep fall. BSE Sensex slumps 0.8%, while the Nifty drops 0.9%. SEBI approves new KYC norms for foreign portfolio investors, revises settlement mechanism, and rupee falls to a lifetime low of 72 rupees and 98 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.